Hello students, let's see some more problem on convex and concave lens. Okay, so let's take this problem. A lens forms a real image 3 centimeter high. Okay, so a real image and the height of this image is 3 centimeter. Okay, so because it is a real image, so it is inverted also. Okay, तो यहाँ पर हम जो साइन लेंगे किसका लेंगे नेगेटिव. ओके, तो h dash is equal to -3 centimeter है ना. Then an object 1 centimeter high. Okay, so height of object is 1 centimeter. So you can see this diagram. This is a height of an object. We will take it positive, so plus 1 centimeter. Then real and inverted image, so we will take this h dash is equal to -3 centimeter. Now distance between object and image is given. Distance between object and image is given. So when you measure a distance, you will measure from left hand side for object. Okay, left side from lens for object and right side from lens for image. So this we take negative and this we take positive. So total distance between object to image is minus u plus v. Okay, minus u and plus v. So minus u plus v is equal to 15 centimeter. It is given. ये जो डिस्टेंस दिया ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की कितनी दी हुई है आपको 15 सेंटीमीटर. तो कितनी हो जाएगी माइनस यू प्लस वी. ठीक है. नाउ फोकल लेंथ हमें इसमें डिटरमाइन करनी है. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. ओके, सो अप्लाई अ मैग्निफिकेशन फॉर्मूला. सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच डैश बाय एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू. ओके, so we have a value of h dash and h. So put value of h dash and h. -3 divided by 1 is equal to v by u. So from here we will get this relation v is equal to -3u. Okay, now we have this minus u plus v is equal to 15 centimeter. So put a value of v in this equation. Okay, so you will get u is equal to -3.75 centimeter. So this is a value of u. Now put this value of u here, you will get value of v. So v is equal to 11.25 centimeter. Now for focal length, apply a lens formula. Okay, apply a lens formula to determine a focal length. Put the value of v is equal to 11.25 and put the value of u is equal to -3.75. You will get focal length 2.82 centimeter. Okay, so by this way you can solve this problem. Let's see a next problem. So this is the next problem. An object 50 centimeter tall, so h is equal to 50 centimeter, it is given, is placed on the principal axis of a convex lens. तो lens जो given है वो हमें कौन सा है convex lens है. Okay, it's 20 centimeter tall image. So h dash is equal to 20 centimeter is formed on the screen. तो screen पे बन रही है तो मतलब रियल होगी और रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी. ठीक है ना, तो इसलिए h dash हम कितना लेंगे -20 सेंटीमीटर. ओके, स्क्रीन पे बन रही है तो इमेज कैसी होगी रियल होगी और रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी, इसलिए यहाँ साइन किसका लिया जाएगा माइनस का, -20 सेंटीमीटर. ओके, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. तो डिस्टेंस v की वैल्यू कितनी जाएगी +10 सेंटीमीटर. ओके, सो अप्लाई मैग्निफिकेशन फॉर्मूला h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v बाई यू. वी हैव अ वैल्यू ऑफ h डैश h. ओके, एंड v. So put all the values, you will get value of u. Okay, do a calculation, you will get value of u is equal to -2.5 centimeter. Okay, now apply a lens formula for focal length. So lens formula is 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. It is a lens formula. So put the values of v and u with the sign. You will get focal length 7.14 centimeter. Okay, by this you will get a focal length. Okay, let's see a next. So this is a next problem. A 2 centimeter tall object is placed 40 centimeter from a diverging lens. So diverging lens कौन सा होता है कॉनकेव लेंस. तो ये कॉनकेव लेंस की प्रॉब्लम है. ठीक है, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर. तो पॉजिटिव लेंगे अपन h इज इक्वल टू +2 सेंटीमीटर. ठीक है, एंड प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग. तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाएगी u इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर. नेगेटिव लेते हैं तो u इज इक्वल टू कितना जाएगा -40 सेंटीमीटर. और जो डाइवर्जिंग लेंस है कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ भी कैसी दी जाती है नेगेटिव. तो f इज इक्वल टू कितना लेंगे -15 सेंटीमीटर. ठीक है, फॉर्मूला लगा दें आप लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u.
v निकालना है हमें, तो रीअरेंज कर लो, तो 1/v आपके पास आ जाएगा 1/f प्लस 1/u। ठीक है, इस तरह से रीअरेंज करो, वैल्यू पुट करो f और u की विथ साइन। f कितना है, फोकल लेंथ हमारी है -15 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है हमारी है वो -40 है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v, इट इज इक्वल टू -10.90 सेंटीमीटर। ये आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं आपको, जो साइंस देने कि जैसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो नेगेटिव लेंगे, फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस की हमें नेगेटिव लेनी है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, देन जस्ट यूज अ फॉर्मूला। नाउ सी नेक्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट इज द नेचर ऑफ अ लेंस हैविंग अ पावर ऑफ +0.5 डायोप्टर। तो प्लस पावर है, यानी कि फोकल लेंथ भी प्लस होगी, और प्लस फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो इसमें दे रखा है -4d, तो -4d माइनस में पावर है, इसका मतलब फोकल लेंथ भी माइनस में होगी, और माइनस में फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉनकेव लेंस की। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, कॉनकेव लेंस। ओके, नाउ सी दिस 11th क्वेश्चन। So in 11th question it is given that an object of height 4.25 mm is placed। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस लेते हैं हम, तो h इज इक्वल टू 4.25 mm है। पहले इसको सेंटीमीटर में बदल लो। ठीक है, तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो अपने पास आ जाएगा 0.425 सेंटीमीटर। ओके, फिर आगे दिया है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव लेते हैं, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, तो u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ओके, देन पावर दे रखी है उसकी +5 डायोप्टर। ओके, तो फोकल लेंथ निकालनी है आपको और साइज ऑफ द इमेज निकालना है। तो सबसे पहले पावर का फॉर्मूला लगा दो। तो अगर आप f फोकल लेंथ सेंटीमीटर में निकालना चाहते हो तो ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट आप ये अप्लाई कर दो, p इज इक्वल टू 100/f, जब f किस में रख रहे हो आप, सेंटीमीटर में, डायोप्टर। तो f निकालेंगे हम, तो p की वैल्यू ऑलरेडी डायोप्टर में है अपने पास, पावर +5, तो पुट हियर 5, यू विल गेट 20 सेंटीमीटर। तो इस फॉर्मूले में पुट करके आपके पास फोकल लेंथ कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ आपके पास है, u आपके पास है, आपको v निकालना है, तो आप लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो लेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, रीअरेंज करके। ठीक है ना, तो यहाँ से आप सॉल्व करो तो आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी -20 सेंटीमीटर। तो v इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, ये क्या आंसर है आपके पास, इमेज की पोजीशन आ गई। अब माइनस क्या बता रहा है कि ये इमेज जो बन रही है हमारी, ये किस साइड बन रही है, लेफ्ट साइड। ठीक है, माइनस से बता रहा है कि जो इमेज बन रही है वो लेंस के कहाँ बन रही है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, आगे आपसे पूछा है साइज ऑफ इमेज, तो अप्लाई द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, h'/h इज इक्वल टू v/u। यहाँ से h' निकालो आप, तो h' इज इक्वल टू h इंटू v/u। सो पुट ऑल द वैल्यूज विद साइन, h की, v की और u की, इनकी सबकी वैल्यू पुट कर दो आप, आंसर अपने पास इतना जाएगा 0.85 सेंटीमीटर। ओके, 0.85 सेंटीमीटर। नाउ लेट्स सी अ नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस x एंड y। दो लेंस है x और y, और उनके कॉम्बिनेशन की पावर दे रखी है आपको 5 डायोप्टर। ठीक है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस x बी 15 सेंटीमीटर, x की फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो आपको पता नहीं है y की फोकल लेंथ क्या होगी और y का नेचर क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो कॉम्बिनेशन की पावर दे रखी है आपको p इज इक्वल टू 5 डायोप्टर। ठीक है, और फोकल लेंथ मान लेते हैं अपन fx, अज्यूम कर लेते हैं x की जो फोकल लेंथ तो कितनी ले ली अपन ने, fx, और वो कितनी गिवन है अपन को, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का कितना होगा, तो कॉम्बिनेशन आप जानते हो एल्जेब्रिक सम होता है। अभी तो हमें पता नहीं है सेकंड वाले का क्या नेचर है, तो हम क्या लिखते हैं, p इज इक्वल टू p1 प्लस p2। ओके, जो पावर होगी टोटल पावर अगर आप लिखना चाहें तो p इज इक्वल टू px। ओके, p इज इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा, पावर ऑफ x, ओके, प्लस पावर ऑफ y। ओके, सो ये टोटल पावर आ जाएगी हमारे पास कॉम्बिनेशन की, p इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई। तो अब इस p के लिए लिखेंगे हम 1/f, क्योंकि पावर क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होती है, तो इस p के लिए लिख सकते हो 1/f। px के लिए लिख देंगे 1/fx, और py के लिए लिख देंगे 1/fy। ठीक है,
तो एफ हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन की पावर अपने पास गिवन है। तो पी इज इक्वल टू आप लगा दें 100 अपॉन एफ सेंटीमीटर। ओके, तो पुट हियर वैल्यू ऑफ पी 5 डायोप्टर, यू विल गेट फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ओके, तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ हमारे पास कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। एक्स की फोकल लेंथ ऑलरेडी गिवन ही है, ठीक है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो आप, ठीक है। तो 1 अपॉन एफ वाई इज इक्वल टू कितना होगा 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन एफ एक्स। एफ की वैल्यू आपको 20 कैलकुलेट करिए आपने 20 सेंटीमीटर, एफ एक्स कितना कैलकुलेट गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो इनको सॉल्व करो आप। व्हेन यू सॉल्व दिस, व्हेन यू डू अ कैलकुलेशन यू विल गेट फोकल लेंथ ऑफ वाई, फोकल लेंथ ऑफ वाई लेंस आपकी आएगी -60 सेंटीमीटर। अब -60 आ रहा है नेगेटिव, तो नेगेटिव का क्या मतलब है कि लेंस कौन सा होगा कॉनकेव लेंस। तो नेचर कैसा होगा इसका कॉनकेव लेंस होगा ये, ठीक है ना, नेगेटिव साइन की वजह से। और मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका 60 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। सो एक बार रीड कर लेते हैं क्वेश्चन कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। यानी किसी ऑब्जेक्ट को 36 सेंटीमीटर पे रखते हैं लेंस से तो सेम साइज की इमेज बनती है। अब आप जानते हैं ये केस ऑलरेडी किया हुआ है हमने कॉन्वेक्स लेंस में। अगर आप 2f डिस्टेंस पे रखोगे, फोकल लेंथ की डबल डिस्टेंस पे रखोगे ऑब्जेक्ट को, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो सेम साइज की इमेज बनेगी, ठीक है। तो फोकल लेंथ का डबल मतलब 2f हो गया, यानी हमें जो डिस्टेंस दी हुई है ऑब्जेक्ट की वो कितनी है 2f इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। ओके, सो यू जस्ट फर्स्ट डिटरमाइन द फोकल लेंथ। तो 2f इज इक्वल टू 36 गिवन है, तो f इज इक्वल टू कितना जाएगा 18 सेंटीमीटर। अब हमारी फोकल लेंथ कितनी हो गई 18 सेंटीमीटर। ओके, अब फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट को आप रखते हो, जैसा इन्हें दिया है फर्स्ट केस में कि उसको 10 सेंटीमीटर पे रख रहे हो, तो 10 सेंटीमीटर मतलब हमारा ऑब्जेक्ट किसके बीच में रखेंगे हम, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो ये हमारा 6th केस हो जाएगा, ठीक है। तो 6th केस में जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। तो इमेज जो फॉर्म होगी वो हमारी कैसी होगी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ओके, सेकेंड दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो 20 सेंटीमीटर का मतलब है कि जो आप ऑब्जेक्ट प्लेस करोगे वो रखोगे आप f और 2f के बीच में। तो f और 2f के अगर बीच में रखोगे तो इमेज जो बनेगी हमारी कैसे बनेगी रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। सो दिस केस ऑल्सो वी डिस्कस्ड व्हेन वी डिस्कस द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने और किस तरह से इनके सॉल्यूशन आपको बनाने हैं, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से लर्न करें, अच्छे से सीखें इनका सॉल्यूशन करना, और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है आप मुझे मैसेज करें और पूछें जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं इसमें। नेक्स्ट टाइम आई विल गिव यू अ प्रॉब्लम शीट। ओके, तो वो प्रॉब्लम शीट फिर हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो कीप लर्निंग, सीखते रहें इनको क्वेश्चंस को, एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। Okay, thank you.